कौन सी टाइप की मूवी देखती थी तुम? रोमांटिक। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कि मतलब जो लाइफ में है या नहीं है वो देखना है, क्या क्या करना है? मैंने सोचा था कॉमर्स, मतलब ऐसे ऐसे ही सोच लिया था कि ना कॉमर्स लेना चाहिए क्योंकि मेरे को मैथ्स पसंद थी। ऐसे फिर मैंने कहा कि सब अच्छे बच्चे तो क्लास के साइंस ले रहे हैं। काफ़ी ऐसे फॉरेनर्स वगैरह से भी बात की मैं मिला था, तो उनको अगर ये चीज़ बोलो कि यहाँ इंजीनियरिंग या डॉक्टर यही करना पड़ता ना, दे वर शॉक्ड कि ये क्या है। Hi, if you're new around here, my name is Dhruv and welcome to this video. I get a lot of doubts from people who watch my videos. Some of them ask me that they have got 99 percentile, should they focus on J Advanced or should they target bits? At the same time, there are some people who have got like a 50 percentile and they're like, how do we get into an NIT or how do we just get into a tier 1 college, right? So I realized that I've been having such random, candid conversations with my friends who come from various backgrounds, from different parts of the country. Some of them have been toppers throughout their life. Some of them, like me, weren't really toppers, but we somehow solved the problems that we were facing and somehow made it here. And I realized how nice it would be if 3 or 4 of us could actually sit in a room and discuss about how is life before JE, how is life during JE, and how has that impacted our life right now. What problems did we face when we were studying for these entrance exams, and how did we go about solving it? Did we take a drop or did we not take a drop? What were the different types of problems we faced during our preparation because of COVID or because of whatnot? This video is part 1 and we will be discussing about how is life before JE. I think it's a little important to understand the backgrounds of people before we actually dive into how we actually studied for these entrance exams. I am pretty sure that you'll be able to relate to at least one of us because I've tried to get people from different backgrounds. So watch this video completely, subscribe the channel so that you get the notification when I upload the part 2, and yeah, enjoy the video. Welcome to another video. I've got 3 of my friends here from BITS Goa, and today we'll be discussing about a very interesting topic which I always wanted to discuss with my friends. I have candid conversations about this topic with my friends like throughout my second semester when everything was offline. But I thought कि एक बार इसको on camera कर लेते हैं with 3 different types of people from across the country. So everyone, like, एक बार अपने आप को introduce कर लो please. Hi, I'm Ishika and I'm from Kota. Hi everyone, I'm from Mathura. मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में हूँ. And she's Anushka, by the way. अनुष्का. So hello everyone, मतलब पॉडकास्ट आ गया होगा क्या? इसको तो जानते ही होगे. He's Kushal. So I am Kushal and I am from ENI branch and I am from Chhattisgarh. And I'm Dhruv, I'm from Goa. So that means कि all of us come from 4 different parts of India. And इसका ये मतलब होता है कि India is very diverse and 4 different parts से आना मतलब it's like बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है अबाउट समथिंग. सो पहले सेक्शन में लेट्स डिस्कस कि हाउ इज लाइफ बिफोर 11th and 12th. 11th and 12th में तो सब लोगों ने जेई बिटचार्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी. वी शुड गो टू कोचिंग, कुछ ना कुछ था. बट बिफोर जेई, बिफोर गोइंग टू 11th, हाउ इज लाइफ लाइक 9th में 10th में लाइक सब लोग यहाँ पे पढ़ाकू तो है, बट अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स ऐसा क्या करते थे हम लोग, लाइक मे बी स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्या क्या किया है, सो दैट उसके बारे में बात करनी है. तो 10th तक तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, तो मैं बहुत ड्राइंग वगैरह करती थी 10th तक. काफ़ी मतलब यही चीज़ मैं ज़्यादा करती थी. स्कूल में भी हर ड्राइंग कंपटीशन में आई पार्टिसिपेटेड. और 10th तक तो मार्क्स भी बहुत अच्छा आते थे. 10th तक सब अच्छा था. उसके बाद उसके बाद की बात बाद में करेंगे जब थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. कुशल वैसे म्यूजिक में था ना बहुत. हाँ, तो मैं मतलब काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता था. एंड मतलब उसके पहले क्लास 9th में मैंने लाइक वोकल्स की डिग्री भी ले ली थी खैड़गढ़ यूनिवर्सिटी से. एंड बाकी स्पोर्ट्स में हमेशा रोज़ मैं स्पोर्ट्स खेलता था, रोज़ क्रिकेट खेलता था. एंड बाकी म्यूजिक मतलब रोज़ ही करता था. लाइक मैं भी आई यूज्ड टू प्ले तबला. आई प्लेड तबला फॉर 8 years. आई ऑल्सो डिड क्लासिकल सिंगिंग, और मैंने तबला में आई हैव गिवन 4 exams एंड सिंगिंग में भी मैंने आई हैव गिवन 3 exams क्लासिकल सिंगिंग में. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू गो टू मैनी क्विजेस, जो भी ऐसे जोग्राफी, जीके रिलेटेड के क्विजेस होते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. एंड हाँ, यूट्यूब वीडियोज़ आई स्टार्टेड मेकिंग इन 2017 जब मैं 7th 8th में था. एंड अनुष्का, मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करती थी और कभी कभी बैडमिंटन. उस समय नेटफ्लिक्स था क्या? अब जब हम 8th में थे मूवीज देखती रहती थी जो भी था. ओके. तो कौन सी टाइप की मूवी देखती थी तुम? रोमांटिक. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. कि मतलब जो लाइफ में है या नहीं है वो देखना है, क्या क्या करना है?
क्या क्या करना है ऐसे। तुम लोग नहीं देखते थे मूवीज? रेयरली। मैं भी रेयरली। मेरे को पसंद ही, मैं देखती थी मूवीज। सेम ब्रो। कि मतलब थिएटर में जाके देखना या? थिएटर में देखती थी, घर पे नहीं देखती थी। मेरे घर पे तो कल्चर ही नहीं था थिएटर में जाने का। जब मैं 9th में था उस समय वो एक बार हमको पासेस मिले टू गो टू एक गोवा में थिएटर आइनॉक्स, तो वहाँ पे ओके चेन्नई एक्सप्रेस देखने गए थे हम लोग। उसके पहले लाइक थिएटर जाना तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ। पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ता नहीं, था। मेरे नहीं, पापा को हमारा बहुत तो light ही ज्यादा था। पसंद है मूवीज वगैरह देखना, तो वो लेके जाते थे। हम लोग तो ऐसा, हम लोग का ये चलता था, मेरे 2 ट्विंस ब्रदर हैं, ठीक है, दोनों ऐसा, तो हम तीनों टाइम पास ही करते रहते थे, दिन भर पड़े रहते थे, एक दूसरे पे लड़ रहे हैं। मेरे पूरे घर में इसलिए कैमराज है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे घर में वॉशरूम के अलावा हर जगह कैमरा है। ये कैसा कर? क्योंकि मम्मी तो पापा जेल है। अरे क्योंकि ये लड़ाई के बाद ये मम्मा पापा का डिसीजन होता था कि किसने लड़ाई चालू की, तो कैमरा पे चेक करते थे कौन लड़ा। दिन भर लड़ते रहते थे हम, सुबह से लेकर शाम तक। कैसे लाइक तुम्हारा तो ठीक है, यू शुड वॉच मूवीज, तुम थोड़ा बहुत आर्ट करती थी, प्रोफेशनली करती थी या ऐसे नहीं नहीं, मतलब स्कूल में एक्चुअली कुछ भी आर्ट का होता था मेरे को बुलाते थे, तो लाइक सब मैं ही करती थी ऐसा। तुमने तो मतलब म्यूजिक में बहुत वगैरह कर रखा है, तो तुम कैसे मैनेज करते थे? मतलब उस समय क्या होता है कि लाइक आई हैव रियलाइज वन थिंग कि नाउ व्हेन आई, जैसे मेरा भाई है, इज इन 10th, अभी 10th में जाएगा, एंड व्हेन आई लुक एट हिज स्टडीज आई एम लाइक ये तो इजी है, ये तो मैंने कर लिया हाँ, था। मेरी सिस्टर भी 10th में। बट देन आई रिमेंबर कि जब मैं उस एज में था, इट वाज अ बिग डील फॉर मी, एंड देन इट इज it is a big deal. It is a big deal. We are not spreading wrong information here, I'm sorry. But कैसे मैनेज करते थे तुम? मतलब कि लाइक ग्रेजुएशन कर रखी तूने म्यूजिक में, मतलब यू आर वेरी वेल तो वर्स्ड। तब लाइक टाइम मैनेज हो जाता था। इट्स बेसिकली कि सुबेरे शेड्यूल बताऊं तो सुबेरे 6 बजे उठ के स्कूल जाना, एंड देन स्कूल से आके फिर सो जाना थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ओकेशनल लाइक ऑल्टरनेट डेज कोचिंग रहता था, तो मैं फिटजी भी जाता था 9th-10th में भी, तो ऑल्टरनेट डेज कोचिंग रहती थी। Foundation. हाँ, देन उसके बाद जिस भी दिन कोचिंग नहीं रहती थी, आई यूज टू प्ले क्रिकेट शाम को 5 से 6 या 7 बजे तक। देन फिर आके मैं पढ़ने बैठ जाता था, एंड बीच में जब भी लाइक ब्रेक्स लेने होते थे, देन आई यूज टू डू म्यूजिक। और मतलब जैसे ड्रम सेट घर में था तो मैं ड्रम बजा लिया करता था, यही करता था बेसिकली। गाना पहले मुझे उतना पसंद नहीं था, अब पसंद है गाना ज़्यादा, बट तब मैं गाना नहीं गाता था, बट तब मैं ड्रम्स बहुत ज़्यादा प्ले करता था। एंड बाकी ऐसा क्लास 9 तक में ऐसा था कि क्योंकि ग्रेजुएशन करना था म्यूजिक में, वो लास्ट ईयर था बेसिकली, 6th ईयर इज द लास्ट ईयर, तो उस ईयर में मैंने एक सर के पास ज्वाइन कर लिया था, तो वैसे ही ऑल्टरनेट डेज फिर मैं 1-1 घंटे के लिए चले जाता था। 10th में करते थे ये सब? 10th में नहीं, 9th में डिग्री कंप्लीट हो गई थी, बट उसके बाद लाइक 10th में जैसे कि मैंने बताया, ऐसे जब मूड होता था तब ऐसे म्यूजिक कर लेता था, बट सीरियसली नहीं करता था। बट वही कि जब जैसे जैसे गैप्स मिले उस टाइम पे रिक्रिएशन। अपना लाइक 10th तो 2018-2019 में था ना, अभी कितने साल? 2019-2018। मेरा शेड्यूल तो ये था कि लाइक हम लोग मैं सुबह स्कूल जाती थी 7 बजे, फिर 2 बजे स्कूल खत्म होता था, 3 बजे तक घर आती थी, 4 बजे से कोचिंग, 8 बजे तक कोचिंग, फिर 8 से 10 जो कोचिंग में पढ़ा है, 8 से 12, 10। कौन सी कोचिंग 10th में? ठीक है ना, थी लोकल कोचिंग, कोचिंग जेई के लिए? जेई में 10th में 9-10 ये सब मथुरा में हो रहा है? हाँ, ये सब मंदिरों में हो रहा है। क्या हो रहा है भाई मथुरा में? उसके बाद फिर 8-9 बजे घर आती थी खाना खा के, फिर 12 बजे तक पढ़ती थी, फिर सो जाती थी, फिर रिपीट। मतलब 1/3 घंटे पढ़ाई करती तब थी एक क्या? चीज ऐसा रियलाइज किया कि तब ऐसा ना आईआईटी के लिए और ऐसा अच्छे कॉलेज में जाने की मतलब ऐसा आग बहुत ज्यादा थी, तो लाइक अभी तो नहीं होती पढ़ाई, तब ऐसा था कि मैं लाइक रात के 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ के स्कूल भी जा रहा हाँ, हूँ, तो कुछ ऐसा भी स्लीपीनेस भी नहीं लगता था, कुछ नहीं। अभी तो यहाँ 10 घंटे भी सो लो तो भी आलस आता है। मन करता है 2 घंटे और 2 घंटे और बस। सो इसका मतलब इतना तुमने अपना स्ट्रॉन्ग रूटीन बना दिया था, एंड यू आर सो लॉस्ट इन इट बिकॉज ऑफ द ड्रीम कि यू नेवर रियलाइज्ड। whereas तुम नहीं गए, तुम यू डिडंट गो टू नहीं, आई वेंट, बट मेरा ऑल्टरनेट डेज रेजोनेंस रहता था। बेसिक सीबीएसई के पढ़ाते थे, 4 to 8 होता था ऑल्टरनेट डेज। मेरे 10th में, मेरे 9th में आई जस्ट वेंट टू, मैं गोवा बोर्ड से हूँ, सीबीएसई आईसीएसई नहीं, सो आई यूज्ड टू गो फॉर फ्रेंच। मेरा फ्रेंच लैंग्वेज था, लाइक 3rd लैंग्वेज होती है इंग्लिश। चल कुछ स्टेटमेंट बोल के दिखा फ्रेंच में। जमापेल ध्रुव, मतलब माय नेम इज ध्रुव, यू शुड सब्सक्राइब। ये मुझे फ्रेंच में नहीं बोलने आ रहा, बट तो ओके। देजावू फ्रेंच है क्या? फ्रेंच में मतलब क्या उसका? देजा मतलब ऑलरेडी, और वो मतलब सीन, तो इसका मतलब ऑलरेडी सीन तुमने कभी ना कभी आई लव यू को टीएम जत एम, हाँ, जत एम टीएम स्पेनिश एज अ ब्रदर ओ मो फ्रेयर। 10th में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना कोचिंग के लिए, कि लाइक अगले साल से कोचिंग जाना है, तो
तो वो मैंने यही सोच के दिया था कि ये कोचिंग मुझे बिट्स के लिए तैयारी करा देगी, मतलब बिट्स हार्ट का प्रेप करा देगी। उसके पहले मैं सिर्फ साइंस मैथ्स के लिए एस्ट्रो ऊपर कोचिंग भी नहीं पढ़ूंगा मैं, और फ्रेंच के लिए ट्यूशन जाता था मैं। उसके अलावा आई हैड नो क्लू एंड मतलब हाँ, दिन भर पढ़ाई। एंड मैं स्कूल में कैप्टन भी था, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एंड किसका कैप्टन? हाउस कैप्टन। तो ऑल्दो स्पोर्ट्स डे के दिन मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था सिंगिंग का, तो मेरा कुछ पॉइंट ही नहीं था। पूरा साल मैंने काम किया एज अ कैप्टन। स्पोर्ट्स डे के दिन मैं था नहीं, बिकॉज मुझे कंपटीशन में जाना था, रिप्रेजेंट करना था। तो वहाँ पे जीत तो गया मैं, अगली बात गलत नहीं, वो अलग बात है। बट ये जहाँ पे मेन काम था हाउस कैप्टन का, वहाँ पे मैं प्रेजेंट ही नहीं था, मेरे फोटो ही नहीं है कि मैं हाउस कैप्टन था। तो हाँ, मतलब 10th में क्या, मतलब पूरा फुल घोट मोड ऑन। 10th में हाँ, नहीं बोर्ड्स के टाइम तक तो हो गया था घोट मोड, क्योंकि बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है 10th में। तब तक तो हो ही गया था। प्री बोर्ड से पहले, मतलब पहले मैं पढ़ने लग गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट था, फिर तो पढ़ती थी मैं। काफी पढ़ाई की थी 10th में भी। पढ़ाई भी होती थी 10th में। 10th तक मेनली ऐसा था कि 10th तक इतना पता था कि 11th में भी अगर ऐसा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा ही होगा। 10th तक ऐसा था, बहुत लाइट मोड में चीज़ हुई। ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं था कि 10th में नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं है, वैसा वाला नहीं था। तो बहुत स्ट्रेस फ्री होके हम काम करते थे, तो इसलिए सब अच्छा हुआ ऐसा लगता है। बट उसके बाद एक प्रेशर आ गया कि और अब 10th अच्छा तक सब कुछ अपने आप भी, मतलब सब हमेशा अच्छा ही हुआ है, मतलब अच्छे ही मार्क्स आते थे 10th तक हमेशा। ऐसा है बाद में पता लगा कि लाइक कंपटीशन क्या था। 10th तक इतना कंपटीशन नहीं होता। तुम्हें ये बात फील हुई थी? लाइक मुझे बहुत मेजरली फील हुई थी कि लाइक जब मैं 10th से 11th में आया ना, आई केम टू नो कि मैं तो पूरी कंट्री के साथ कम्पीट करने वाला हूँ यहाँ पे। वेयर स्टेट बोर्ड में आई वाज लाइक, गोवा में कितने कम लोग होते हैं ना, सो आई वाज लाइक ठीक है, फ्यू थाउजेंड लोग हैं जिनके साथ आई बी कम्पीटिंग, कि मतलब ठीक है, वो एक कुछ अवार्ड होता है, वो 1%, वो टॉप 100 लोगों को मिलता है, उसमें आना क्वाइट ईजी है। बट देन आई वाज लाइक, इंडिया में टॉप 100 में आना एंड गोवा में टॉप 100 में आना। बट तू ऐसा CBSE भी देखेगा ना, तो उसमें भी लाइक 50,000 बच्चों के ऐसे 90% से ऊपर आते हैं। तो हाँ, लाइट ही है। तो इट्स नॉट कि मतलब बेसिकली कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बाद एक्चुअली कंपटीशन शुरू होता है। बट आई थिंक कि हमको पता नहीं होता ना, वी आर लाइक नॉट अवेयर अबाउट कि इसके आगे जाके और कंपटीशन होने वाला है। बच्चा क्लूलेस होता है, वही चीज़। बच्चा क्लूलेस होता है, उसको सिर्फ ये पता होता है कि साइंस लेना है नहीं लेना। तुमने कभी सोचा था कि तुमने से किसी ने कि कॉमर्स या फिर आर्ट्स के बारे में कभी थॉट आया था कि कुछ? मैंने सोचा था कॉमर्स, मतलब ऐसे ही सोच लिया था कि ना कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को मैथ्स पसंद थी। ऐसे फिर मैंने कहा कि सब अच्छे बच्चे तो क्लास के साइंस ले रहे हैं, तो मैं भी वही लेती हूँ। चल, और साइंस में ऑप्शन मेरा काइंड ऑफ डिसाइडेड था, क्योंकि ऐसे बोल सकते हो कि पेरेंट्स की तरफ से ऐसा फीड कर दिया गया था कि यही है, तो साइंस ही है, साइंस ही फ्यूचर है, मेरे को अच्छे बच्चे यहीं पे जाते हैं। मेरे को तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। जेई के वक्त भी ऐसा था, मेरा स्कोर मैथ्स में बहुत ज़्यादा रहता था। मैथ्स के स्कोर बच्चे दोनों का मिला के मैथ्स का आधा नहीं होता था ब्रो। मैथ्स में मैं लिटरल दिन में 6-7 घंटे मैथ्स कर लेती थी आराम से, और कुछ नहीं पढ़ा जाता था, बोरिंग होता और सब। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मान लो कॉमर्स ले लेती या फिर आर्ट्स ले लेती, तो कैसी होती जिंदगी अभी? कॉमर्स में भी लाइक मैं अगर करती तो सीए करती, और हार्ड वर्क तो उसमें भी है बहुत ज्यादा। उसमें भी ज़्यादा ये पर- एकदम ये हो गया ना, मतलब इट्स लाइक साइंस लोगे तो IIT जाओगे, बिट्स जाओगे, कॉमर्स लोगे तो CA बनोगे, आर्ट्स लोगे तो लॉयर बनोगे, या फिर ऐसा कुछ करोगे। इसके आर्ट्स लोगे तो यूपीएससी। हाँ, तो हाँ, mind- यूपीएससी रह कैसे गया? माइंड में भी मतलब वैसा ही रहता है कि साइंस लिया है तो या तो इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे। अरे दीज आर द मोस्ट लाइक कॉमन रोड मैप्स जो लोग जाते हैं। हाँ वही, तब तक यही पता था। इतना स्कूल में इतना वो आइडिया नहीं था कि आगे और भी इतने ऑप्शंस मेनली होते क्या है हैं, कि कुछ ऐसा कर था सकते कि हैं। एक बार इंजीनियरिंग कर लो, फिर जो करना है करो, वैसा वाला। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द बेंचमार्क, इसके ऊपर लाइफ स्टार्ट्स। मतलब ये हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है। इंडिया में आई थिंक कॉमन परसेप्शन अवेयरनेस भी नहीं है ज्यादा कि लाइक मैंने काफी ऐसे फॉरेनर्स वगैरह से भी बात की, मैं मिला था, तो उनको जब ये चीज़ बोलो कि यहाँ इंजीनियरिंग या डॉक्टर यही करना पड़ता ना, दे वर शॉक्ड कि ये क्या है मतलब। बाहर मतलब आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम ना। हाँ, लाइक मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, वो यूके का था, लाइक ही इज हाफ इंडियन हाफ इंग्लिश। तो वो मतलब वो इजीली उसको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ रहा है। और लेकिन उसको सोशल स्टडीज़ पसंद है, तो वो सोशल स्टडीज़ लेके ही पढ़ रहा है। ऐसा उसके भाई को बहुत पसंद था कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, तो वो लाइक वहाँ के, वो शायद ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है वहाँ कंप्यूटर साइंस, एंड अभी वो गूगल में। तो बट उसका भाई सिमिलरली वो ले सकता है कंप्यूटर साइंस, ही नोस कि वो बोलते हैं कि आई विल मेक अ टन ऑफ मनी,
बट मैं फिर भी उस चीज़ को नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं सोशल स्टडीज़ ही लूँगा। हमारे पापा जब अपने 10th में थे, हमारे पेरेंट्स जब लाइक उनके 10th 11th 12th में थे, उस समय लाइक अकेड्स या फिर स्टडीज़ को इतना भाव देते थे ना कि मतलब इट्स लाइक यही है लाइफ में, यही है, मतलब यू शुड पहले तुम BSc करो, फिर MSc करो, फिर उसके बाद हो सके तो और एक मास्टर्स डिग्री करो, PhD करो, एंड देन लाइक यू हैव समथिंग स्टेबल। बट आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि लाइट है कंपैरेटिवली। आज के तो बहुत लाइक 20 साल 25 ईयर्स के गैप में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है ना। बिकॉज इट हैज़ मेनली सम रीजंस कि लाइक तब इंटरनेट नहीं होता था, हाँ, तब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, सो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी दैट्स द ओनली वे, एजुकेशन इज द ओनली वे, तुम पढ़ के ही निकल सकते हो। बट आज ऑनलाइन बैठ के भी तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक नॉर्मल फ्रीलांसिंग करके उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ट्रू। सो ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक लोग अनअवेयर है इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है, एंड देन दे स्टिल वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन कि जैसे पहले होता था वैसे अभी भी करना है। बट आई डोंट नो, मतलब आई थिंक एक 10 साल में पढ़ाई लाइक बहुत रिलेवेंट हो जाएगी। आई एम वेरी स्केयर्ड कि द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक ऐसे जो हम इतनी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, आई एम लाइक 10-15 साल के बाद 10 years में इसकी वैल्यू मतलब लोग नहीं आएंगे। हाँ बहुत लाइक कम हो जाएगी। हाँ ऑलरेडी Because, लाइक like, आई गेस कम, जैसे हो रहा है इंजीनियरिंग भी हर लोग साल। कम कर रहे हैं धीरे धीरे। बिकॉज लाइक क्योंकि हमें ये चीज़ समझ आ गई है एंड हमारे आने वाली जनरेशन हाँ। को हम वो चीज़ बताएंगे ना जो हमको पता है ये गलत है, तो फिर नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हम्म, हमको दिखेगा कि अगर हम अपने बच्चे को लाइक बचपन से ट्रेन करें स्किल्स को लेके एंड लाइक उसको एक पॉइंट मान लो वो 18 साल का हो गया है, उसको कोडिंग आती है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, फ्रीलांसिंग आती है, जो भी है, तो एंड वो स्किल्स के तौर पे ही उसको जॉब मिल जा रही है या फिर वो आगे कुछ स्टार्टअप कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसी में जाएंगे, उसको ज़बरदस्ती कॉलेज क्यों भेजेंगे। ट्रू। जैसे कि मैं अभी पढ़ा कि लाइक क्लास 11th का एक बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट कर गया एंड वो UI UX डिजाइन में बहुत अच्छा है, देन ही अप्लाइड फॉर जॉब्स फ्रॉम थ्रू लिंक्डइन एंड ट्विटर एंड अभी वो बैंगलोर पे काम कर रहा है। इन जनरल आई थिंक हमारा जो रहा है 10th तक का सीन वो सेम ही रहा है कि ठीक है 10th तक उस समय हमको लगता था कि यही है, देन वी केम आउट ऑफ इट एंड केम टू नो कि भाई ये तो 10 लाख बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन होने वाला है इंडिया में, एंड वही है, कोचिंग गए, कुछ ना कुछ किया, एंड वी केम टू नो अबाउट ऑल दिस एंड एग्जाम। सो आई थिंक इस वाले फ्रेगमेंट के लिए इतना ही रखते हैं टिल 10th तक। आई थिंक बिट्स के सारे बच्चे ऑलमोस्ट सारे बच्चे 10th में बहुत ही फोड़े हैं, रिगार्डलेस ऑफ विच बोर्ड दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं वो लोग। 12th बोर्ड शायद किसी का लुढ़क गया बिकॉज वो कर रहे थे, लेकिन हमने 10th दिया नहीं था बोर्ड्स, बोर्ड कैंसिल हो गए थे। हाँ कोविड सैड, बट ओके टिल 10th एटलीस्ट। तूने तो दिया तूने भी तो दिया था। इसके बारे में ये डिस्कस करने वाली बात है इन द नेक्स्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, इस वाले फ्रेगमेंट के लिए इतना ही रखता है, एंड लेट्स सी पार्ट 2 में लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन थिंग जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं प्रेजेंट इसको रिकॉर्ड करने के लिए। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बोल दो, बाय बाय गाइस। बाय।